Good morning everyone. Here I am Miss Rupam Bajpayee, and here in this today's class we are going to start our new lesson, which is lesson number 3, uses of a computer. So first of all, let us know that what we have learned in our previous classes. As we have learned that there were types, some parts of the computer we have learned, how we are inputting the things, कैसे input होता था, and there are many devices which were input devices and some were output devices that we have learned in our previous classes. So here in our today's class we are going to learn about the uses of a computer. ठीक है, हम हमारे आज के क्लास में कंप्यूटर के यूजेस के बारे में जानने वाले हैं. ठीक है, तो आप सभी ने एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर तो देखा हुआ है ना. यू हैव सीन कंप्यूटर एट योर होम, एट एनी other places like an office, school, anywhere. ठीक है, you have seen. So but you don't know about that is the use, कि उसका यूज़ क्या है. what you don't know about of computer, that is the use of it, है ना. so let's that we will learn in this lesson. so here what we will learn first, let's see. हम देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे. सो यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब कंप्यूटर का यूज़ डिफरेंट प्लेसेस पर. देयर कैन बी होम. देखिए, आप घर पर भी आपके कंप्यूटर होता है. सो इट मीन्स दैट समवन इज यूजिंग इट, नो. It means actually someone is using it. And in school, office, shop, bank, hospital, airport and railway station, printing and publishing, films and advertisement, research and development, etc. So many things are written there. So where we are using the computer, like at home we are doing our many of them these days are doing work from home, मतलब वो घर से ही अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं. सो हाउ दे आर डूइंग, बिकॉज दे हैव अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप एट देयर होम, है ना. सो दैट इज़ हाउ दे आर यूजिंग इट एट होम. इन स्कूल ऑल्सो मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ आर बीइंग डन इन ऑन द कंप्यूटर, है ना. वो भी कहाँ हो रहे हैं, कंप्यूटर पर. ऑफिस मोस्टली ऑल द ऑफिस वर्क्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कंप्यूटर पे. देन शॉप, नाउ दीज डेज वी आर यूजिंग कंप्यूटर इन द शॉप टू. बैंक, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट एंड मैनी वेयर वी आर यूजिंग कंप्यूटर. And like printing and publishing, this is also a very essential thing that we are using computer. Then films and advertisement, this is also a very important thing these days, because you all are also watching films, and advertisement also a part of our life these days. And research and development, most of the thing are being done in the computer. Now let's see. Children, computer has become part and parcel of our life. Here you can see this word part and parcel. Part and parcel mean something which is included in our life. ऐसा मतलब कि जो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, विच इज़ नॉट इवन अवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्ट एंड पार्सल. ठीक है. सो चिल्ड्रन, computer has become part and parcel of our life. It is used almost in every field. It is used almost in every field. Let's learn about uses of a computer at different places. तो हम यहाँ आज हमारे लेसन में यहाँ पर इसके बहुत सारे यूजेस देखेंगे जो कि हम डिफरेंट प्लेसेस पर करते हैं. मतलब आप इसको ना कि सिर्फ अपने घर पर यूज़ कर रहे हो. इन मैनी वेयर, मैनी प्लेसेस वी आर यूजिंग इट. एंड for what work, for which work we are using it, that is we are going to learn in this lesson today. So here first we have is home. Okay, so at home a computer, and in which things it going to help, that we will learn here. So helps us to do our homework, and play games. So one thing you know very well, that you are playing games on the computer. This thing you know very well, that you are using it as a video game. For playing many games you are using a computer. And for doing your homework, how we will use this?
You are not these days using the computer for your homework, but how you can do this, like for as you are using your mobile phone, as you are not getting anything, so you are searching it on your mobile phone, है ना. आपको कुछ भी जब समझ में नहीं आता है तो आप क्या करते हो, उसको मोबाइल पर सर्च करते हो. दैट थिंग यू कैन डू ऑन योर कंप्यूटर एज वेल. मतलब उसे आप कहाँ कर सकते हो, कंप्यूटर में भी कर सकते हो. एंड इन द कंप्यूटर देयर इज़ अ कैलकुलेटर टू. वहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेटर भी होता है. देयर यू कैन कैलकुलेट नंबर्स. नाउ नेक्स्ट, helps our parents to calculate monthly expenses. मतलब मंथली एक्सपेंसेस का मतलब हो जाएगा कि आपने जो मंथ में क्या एक्सपेंड किया है. एक्सपेंड किया है मतलब जैसे आप कुछ भी परचेस करते हो, देन देयर इज़ अ नंबर ऑफ लिस्ट, है ना. क्या हो सकता है वहाँ पर, एक लंबी लिस्ट हो सकती है वेयर यू हैव रिटन द एक्सपेंसेस. मतलब आपने जो भी खर्च किया होता है उसको आप वहाँ पर लिखते हो. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मंथली एक्सपेंसेस. हाँ, सो योर पेरेंट्स कैन कैलकुलेट दिस. मतलब वो इसमें फीड कर सकते हैं, मतलब वो इसमें उसको डाल सकते हैं कि हमारा पूरा एक्सपेंसेस कितना हुआ है, हमने मंथली में कितना एक्सपेंड किया है, सब कुछ. दैट दे कैन पुट इन साइड द कंप्यूटर. वो उसे डाल सकते हैं, उसका पूरा डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ हेल्प्स अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवीज. सो फॉर वॉचिंग द मूवीज यू आर यूजिंग टेलीविज़न. ठीक है, आप टेलीविज़न तो यूज़ कर रहे होगे, बट यू नो व्हाट, दैट ऑन कंप्यूटर, ऑन अ लैपटॉप ऑल्सो यू कैन वॉच मूवीज एंड you can listen the music too. So this also good use of it. Helps us to book air or train ticket. ठीक है, these days you must have listened this word that we are booking our tickets on our mobile phone, है ना. ये चीज़ तो आप लोगों ने बहुत ही कॉमनली सुना होगा कि हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं इन दिनों फॉर बुकिंग आर टिकट्स ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, फॉर एयर, फॉर बसेस ऑल्सो, फॉर इवन बुकिंग अ कैब. मतलब कैब बुक करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम हमारे मोबाइल का यूज़ करते हैं. सो दैट ऑल द थिंग्स वी कैन डू ऑन आवर कंप्यूटर टू ना. उन्हीं चीज़ों को हम कंप्यूटर पर भी करते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड यूज़ ऑफ इट. हेल्प्स अस टू डू ऑनलाइन शॉपिंग एंड पे बिल्स. ठीक है, तो हम कंप्यूटर पर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं. लाइक देयर आर मैनी apps on our mobile phone. Similarly, that sites are on the computer also you can search if it's connected to the internet. अगर आपके कंप्यूटर में आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, ठीक है, then you can do online shopping, you can pay bills also. Then next is helps us to send letters and messages through email. तो email आपने अभी पहली बार सुना होगा यहाँ पर द वर्ड ईमेल. तो ईमेल क्या होता है, जिससे आपके मोबाइल में आपका एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर पर हम कॉल करते हैं, है ना, उसी नंबर पे कॉल कर रहे हैं ना. ऐसे ही किसी पर्सन का एक ईमेल आईडी होता है, ठीक है, उस ईमेल आईडी पर ही उसके पास मेल्स जाएंगे, मतलब उसके पास मैसेजेस जाएंगे. अंडरस्टूड. जैसे आपका एक मोबाइल नंबर है, अगर मैंने आपको मैसेज भेजा तो वो आप ही के पास जाएगा, ऐसा तो नहीं वो अदर के पास चला जाएगा. तो आपका एक पर्टिकुलर नंबर होना इम्पॉर्टेंट है ना. दिस इज सिमिलरली हियर, सम पर्सन शुड हैव एन ईमेल आईडी. किसी पर्सन के पास एक ईमेल आईडी होना भी इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ वी कैन सेंड लेटर और मैसेजेस. So this computer helps us to send letters and messages through email. Understood this part? Let's recall it. मतलब हम इसको एक बार फिर से करते हैं. So आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, हम इसको एक बार फिर से करते हैं. आपको यहाँ पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग पता होना चाहिए. हाँ, पार्ट एंड पार्सल मीन समथिंग विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर लाइफ एंड इट इज़ नॉट अवॉइडेबल. ठीक है, जो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है एंड वी आर यूजिंग इट डेली, सो इट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो वो क्या हो गया है, हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है. Now here at home how we are using it, so you need to learn all the lines. हाँ, इसको अच्छे से आपको रीड भी करना है. At home, a computer helps us to do our homework and play games. Helps our parents to calculate monthly expenses.
helps us to listen to music and watch movies, helps us to book air or train tickets, helps us to do online shopping and pay bills, helps us to send letters and messages through email. Now let's move forward. Here we have do you know a part, and let's read it out. Letters and messages sent through computers. लेटर्स एंड मैसेजेस सेंट थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब जो कंप्यूटर के थ्रू सेंड किए जाते हैं, रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब जो भी ईमेल्स, लेटर्स और मैसेजेस, जो भी लेटर्स और मैसेजेस हम कंप्यूटर के थ्रू सेंड करते हैं, वो वर्ल्ड में किसी भी जगह पर पहुंच जाते हैं इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब बहुत ही कम टाइम में। अब यहाँ पर ये फ्यू वर्ड दिया गया है ना, सो फ्यू मीन्स होता है और भी बहुत ही छोटा या बहुत ही कम समय में उसे हम कहाँ किसी दूसरे प्लेस पर पहुँचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर स्कूल्स, ठीक है, स्कूल्स। सो एट स्कूल अ कंप्यूटर हेल्प्स इन, एट स्कूल अ कंप्यूटर हेल्प्स इन टीचिंग चिल्ड्रन, अ कंप्यूटर हेल्प्स इन टीचिंग चिल्ड्रन। So we are in our school we are teaching this about the computer and also the uses of computer in the school, but these days you all are at your home because it's the time that we are not going outside, no, for a very good cause. तो हम अभी जैसे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, बट सम ऑफ यू, मैनी ऑफ यू मस्ट हैव कंप्यूटर एट योर होम। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसके पास कंप्यूटर होंगे उनके घर पर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पर हम बहुत सारी ऑन आर यूट्यूब यू आर लिसनिंग मैनी म्यूजिक सॉन्ग्स एंड मैनी मोर थिंग्स आर कमिंग एज फॉर टीचिंग टू। जैसे आपको कुछ भी आपके क्लास का कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उस पर सर्च करते हो एंड देन वहाँ पे पूरा क्लास ओपन हो जाता है ना। तो दिस इज़ हाउ इट्स टीचिंग टू एंड टीचिंग चिल्ड्रन ऑल्सो। तो वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर हमें टीच कर रहा है, कंप्यूटर हमें क्या कर रहा है, वो हमें टीच कर रहा है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ठीक है। कीपिंग डिटेल्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मतलब कंप्यूटर में हम सारे टीचर्स की, सारे स्टूडेंट्स की, उनका क्या कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स, उनकी इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ओके। एंड दैट इज़ हाउ वी आर स्टोरिंग इट। स्टोरिंग इट मीन्स उसको हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। कीपिंग डिटेल्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब कि स्कूल में आप अभी तो बहुत टाइम से स्कूल में हो नहीं, बट यहाँ स्कूल में क्या होता है, एक लाइब्रेरी भी है। एंड लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स होते हैं लाइब्रेरी में। तो उन सारे बुक्स का भी एक रिकॉर्ड रखना होता है कि कौन कौन से बुक्स हैं हमारे पास, है ना। तो उनका डिटेल्स, कीपिंग डिटेल्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में जो बुक्स का डिटेल होता है उसको भी हम कंप्यूटर में रखते हैं, ठीक है। मेकिंग टाइम टेबल, टेस्ट पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स, तो आप सभी के जो टाइम टेबल्स होते हैं जो आपके पास अभी आते हैं, इवन आपके पास अभी आपके फर्स्ट पीरियोडिक का भी तो टाइम टेबल आ चुका है ना। इवन वी आर सेंडिंग टेस्ट पेपर्स टू, तो इन सभी चीज़ों को हम कहाँ पर बना सकते हैं, हम कंप्यूटर पर बना सकते हैं। सो एट आवर स्कूल, हमारे स्कूल में हम इन सारे वर्क्स के लिए किसका यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर ऑल दीज वर्क्स, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट वन, ऑफिस। Now next is given office. So in an office a computer helps in an office a computer helps in टाइपिंग लेटर्स एंड रिपोर्ट्स। आप अपने कभी मामा पापा से पूछना कि वो लोग ऑफिस जाते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि ऑफिस जाते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बिजनेस होते हैं, वो शॉप्स पर भी जाते हैं और वो भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो वो उसका यूज़ किस लिए कर रहे हैं, फॉर टाइपिंग एनी रिपोर्ट्स, उनका जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए। मतलब जैसे अगर बिजनेस है तो जिस चीज़ का बिजनेस है उसका भी तो कुछ डेटा होता होगा, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती होगी, उसे वो कहाँ रखेंगे, कंप्यूटर में रखेंगे। एज वेल एज हियर इन ऑफिस द रिपोर्ट्स, टाइपिंग लेटर्स, दीज मैनी ऑफ द वर्क्स दे आर डूइंग ऑन अ कंप्यूटर, वो उसे कहाँ पर कर रहे हैं, कंप्यूटर पर कर रहे हैं,
मेकिंग सैलरी स्लिप्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। मेकिंग सैलरी स्लिप्स मतलब जो वर्क करते हैं, ठीक है, जो वर्क करते हैं उसके लिए उन्हें पेमेंट भी मिलती है। पेमेंट क्या होगा? सैलरी, ठीक है। तो उस सैलरी का भी तो रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अगर कोई भूल गया तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसीलिए हमें उसका क्या बनाना पड़ता है? उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को, रिकॉर्ड को स्टोर करके, सेव करके रखना होता है ना। सो मेकिंग सैलरी स्लिप्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय, अबाउट एनी अदर वर्क, ठीक है, उन सभी चीज़ों का क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। सो in office we are using the computer for sending and receiving email. So now you all are aware with this word email. आप सभी को पता चल गया है कि ईमेल क्या होता है। ईमेल का यूज़ किस लिए करते हैं हम? मैसेजेस को सेंड करने के लिए, मैसेजेस को रिसीव करने के लिए भी होता है, ठीक है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं होगी, विदाउट दिस ईमेल आईडी हाउ विल यू रिसीव द मैसेज, हाउ विल यू रिसीव एनी लेटर, एनीथिंग, है ना। आप उसको, अगर आपके पास ईमेल आईडी ही नहीं होगा तो आप रिसीव कैसे करोगे? आप सेंड भी कैसे करोगे? अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं होगा तो आप किसी को कॉल कैसे लगाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं होगा तो आप उसको, किसी का कॉल आपके पास आएगा भी नहीं, है ना। सिमिलरली हियर वी हैव दिस ईमेल, ठीक है। यहाँ पर ईमेल भी वैसे ही काम करेगा फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। I hope you understood. Next we have shops and departmental stores, ठीक है। शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं? ऐसे स्टोर्स जो किसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके पर्टिकुलर थिंग्स वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। दैट विल बी डिपार्टमेंटल स्टोर्स। Now at shops and departmental, 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 अगर आपको कोई भी बिग स्पेलिंग्स आती हैं तो उसको आपको जल्दी से लर्न भी कर लेना चाहिए, ठीक है। सो एट शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कंप्यूटर हेल्प्स इन, कंप्यूटर इन जगह पर किस लिए हेल्प करेगा? सो मेकिंग बिल्स एंड प्राइस लिस्ट्स। मेकिंग बिल्स एंड प्राइस लिस्ट्स मतलब अब शॉप्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली परचेस हो रही होंगी चीज़ें। अगर चीज़ें परचेस होती हैं तो उनका बिल भी बनेगा, और बिल बनेगा तो प्राइस लिस्ट्स, ये सभी चीज़ें एक ही होती हैं ना। सो मेकिंग बिल्स एंड प्राइस लिस्ट्स। तो अगर कहीं शॉप्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं तो वहाँ पर सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट वर्क आएगा जिसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे? सो फॉर मेकिंग बिल्स एंड प्राइस लिस्ट, इसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, maintaining, maintaining, maintaining records of stocks and sales of different items. Maintaining records of stocks and sales of different item. अब ये stocks क्या होता है, ठीक है। तो किसी शॉप पर आपने देखा होगा बहुत सारा सामान रखा होता है ना। आप कभी जैसे किसी क्लोथ शॉप पर जाते हो तो वहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे क्लोथ्स रखे होते हैं ना, अच्छी तरीके से। एंड तो वहीं क्या होगा? वो स्टॉक्स रहेगा, ठीक है। जो भी सामान जो आता है किसी शॉप में या किसी भी प्लेस पर, तो वो क्या हो गया? उनका स्टॉक्स हो गया। अब उस स्टॉक्स का उन्हें रिकॉर्ड भी तो ज़रूरी है। इफ़ दे वोंट कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक्स प्रॉपरली, देन दे कैन फेस मैनी प्रॉब्लम्स, नो। अगर उनका रिकॉर्ड्स नहीं होगा तो उनको प्रॉब्लम आएगी आगे जाकर। सो दैट इज़ वाई मेंटेन करना का मीन्स क्या हो जाएगा? उसको संभाल कर रखना, ठीक है। मेंटेन करना मीन्स उसको संभाल कर रखना। सो मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक्स एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम, मतलब जो चीज़ें सेल करना मीन्स क्या होता है? उनको सेल करना, बेचना, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो रिकॉर्ड्स हम कहाँ रखने वाले हैं? दैट वी आर गोइंग टू कीप ऑन आवर कंप्यूटर। कीपिंग डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ बिजनेस लाइन, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस लाइन में देखो तो वहाँ पे कस्टमर्स का डिटेल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो हियर दे आर कीपिंग डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स, मतलब वो उन कस्टमर्स का भी डिटेल रखते हैं।
ठीक है. Now here we have bank. So on a bank we are using this computer as well. So at the bank a computer helps in. At the bank a computer helps in मतलब कंप्यूटर बैंक में क्या हेल्प करता है? कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स. मतलब जैसे आप लोग आपके पेरेंट्स एल्डर्स बैंक जाते होंगे, बहुत सारे काम है ना, बैंक जा रहे हैं, बट क्या काम होता है? मे बी उसको मनी को वहाँ पे सेव करके रखते हैं. सो मैनी वर्क्स आर देयर. तो वो कौन हो गए? कस्टमर हो जाएंगे वो, है ना. सो कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स मतलब उन कस्टमर्स का रिकॉर्ड भी तो उन्हें सेव करना होता होगा. कीपिंग डिटेल्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स एंड ATM मतलब जैसे हमें आप सभी को पता है कि बैंक में मनी स्टोर किया जाता है ना, मनी को सेव करते हैं बैंक में. तो कहाँ करते होंगे? एक पर्टिकुलर पर्सन का एक अकाउंट भी तो रहेगा. अगर वो अकाउंट उसका नहीं होगा तो पैसे कहाँ डालोगे? ये भी तो इम्पोर्टेंट है. सो हियर दे आर कीपिंग डिटेल्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स मतलब हर एक पर्सन का एक अकाउंट होगा वेयर दे आर कीपिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन इन दैट अकाउंट. ठीक है. एंड ATMs. अब ATM के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, है ना. आप सभी ने देखा होगा ATM कार्ड जैसा होता है और उस कार्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डेबिट कार्ड होता है. उस ATM एक मशीन होती है जिसमें हम डेबिट कार्ड डालकर पैसे निकालते हैं. सो दैट ATMs रिकॉर्ड ऑल्सो they are saving on the computer. ठीक है. Now here do you know thing and they have given to us ATM's full form. So ATM stands for automatic teller machine. AUTOMATIC automatic teller machine. So ATM stands for automatic teller machine. So student, here I am finishing this today's class and the next part we are finished in our next class. Okay, till then the homework will be for you that read this lesson 10 times. Okay, this will be your homework. Read this lesson 10 times and the word which is difficult to pronounce for you, you are not easily pronouncing it, you are not getting it, so just underline that word, then watch the video again and then see how I am pronouncing it, so you will get it what we are saying this word. Okay, till then take care of yourself everyone. Bye bye.